اور خدا کے کلام کی تلاوت کی سعادت کو، اس برکت کو حاصل کریں گے۔ آج کا حوالہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں تا 16ویں آیت۔ مہربانی سے ایک آواز ہو کر خدا کے کلام کی تلاوت کریں۔ جی۔ تم زمین کے نام ہو، لیکن اگر نام رہا جاتا ہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کس کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رکھا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر بنانے کے لیے بلکہ چراغ باندھ کر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہماری روشنی اور اس کے سامنے ہمارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کی ان خوبصورت آیات پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کا مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مہربانی سے تشریف رکھیں۔ آپ کا مضمون جو ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس مضمون کو 2 بار اونچی آواز میں پڑھیں گے اور پھر اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی ان تلاوت کردہ آیات کی طرف چلیں گے۔ جی۔ Attachment versus detachment۔ پھر سے پڑھیں۔ Attachment versus detachment۔ اردو زبان میں لگاؤ بامقابلہ لا تعلقی، اٹیچمنٹ ورسز ڈٹیچمنٹ، لگاؤ بامقابلہ لا تعلقی، یہ آج کا ہمارا مرکزی عنوان ہوگا، اور ہم اسی عنوان کے تحت خدا کے کلام کے اس حصے میں اتریں گے، اور چند ایک باتیں خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بنیادی سی بات مہربانی سے اس پیغام کے آغاز میں نوٹ کر لیں۔ اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کا جو سیدھا سا تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے ایموشنز کے ساتھ ہے۔ اردو زبان میں جب ہم لگاؤ کی بات کرتے ہیں یا لا تعلقی کی بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے اور آپ کے ایموشنز، میرے اور آپ کے جذبات میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ ان دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے ایموشنز کے ساتھ ہے، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہمارے جذبات کنٹرول میں ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب میرے اور آپ کے جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے تو پھر ان دونوں کے حوالے سے خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لگاؤ کے حوالے سے بھی اور پھر لا تعلق ہونے کے حوالے سے بھی۔ جب ہمارے جذبات، جب ہمارے احساسات کنٹرول میں نہیں ہوتے تو پھر ان دونوں کو لے کر بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ مہربانی سے آج شام نوٹ کر لیں کہ بائبل کے خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے۔ اب وہ میرے اور آپ کے حوالے سے کس قسم کی اٹیچمنٹ چاہتا ہے، بائبل بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے۔ خدا کس طرح سے چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ ہو،
बाइबल इस हवाले से बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर। और मैं जरा सा आपको पीछे आज ले जाना चाहता हूं, पैदाइश की किताब में आपको ले जाना चाहता हूं। आज की बातें बड़ी जबरदस्त होंगी, दिल को छू जाने वाली होंगी, इसलिए आपकी थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो चाहिए होगी। बाइबल के खुदा ने दुनिया के पहले 2 इंसानों को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। बाइबल के खुदा ने दुनिया के पहले 2 इंसानों को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। सादा जुबान में हम ये कह सकते हैं कि आदम और हवा अदन में खुदा के अवतार के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। आदम जो था वो महज मिट्टी का बुत था, और वो तब तक महज मिट्टी का बुत रहा जब तक खुदा ने उसमें अपनी रूह, अपना दम नहीं फूंक दिया। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, बात बड़ी बारीक सी है। मिट्टी के बुत में जब खुदा ने अपना दम, अपना रूह फूंक दिया, तो गोया कि इस हुए जमीन पर इंसान खुदा का अवतार हो गया। क्योंकि असल चीज क्या है, सुप्रीम चीज क्या है? रूह। शाबाश। सुप्रीम चीज जो है वो रूह है। ऐसा नहीं है कि बाइबल के खुदा को इन जिस्मों के साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का इन जिस्मों के साथ वास्ता और ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल का खुदा मेरी और आपकी रूहों के लिए ज्यादा फिक्रमंद रहता है। क्योंकि जवाब तलबी जो है इन जिस्मों से नहीं, इस मिट्टी से नहीं, बल्कि उस रूह से ली जाएगी जो मेरे और आपके अंदर मौजूद है। और फिर इसीलिए डिवीजन करके ये बता दिया गया है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और वो जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप किन ख्यालों में गुम रहते हैं। आने से पहले मैं अपनी मिसेस के साथ बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि सुबह से लेकर अब तक हमने इस जिस्म के सारे तकाजों को पूरा किया है। सुबह से लेकर अब तक हमने इस जिस्म को खिलाया है। और मैं उससे यह सवाल कर रहा था कि क्या हमने रूह को भी आज कुछ खिलाया है? और अगर खिलाया है तो कितना खिलाया है? और जितना खिलाया है क्या वो रूह की डिमांड के मुताबिक भी है या कि नहीं है? सुबह से शाम हो गई, हमने जिस्म के तकाजों को पूरा किया, जिस्म और जिस्म के चक्कर में पड़े रहे, रूह पता नहीं कहां थी। रूह को हमने शेयर भी किया कि नहीं, रूह खुदा के साथ अटैच भी हुई कि नहीं, अटैचमेंट थी या कि नहीं, पता नहीं। जबकि सुप्रीम चीज जो है वो रूह है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि अदन में जब खुदा ने दुनिया के पहले 2 इंसानों को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया, यही वो वक्त था जब शैतान को यह बात अच्छी ना लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आदम और हवा के बनाए जाने से पहले वो जमीन पर फेंका जा चुका था। यही बात उसे अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इंसान और फिर फरिश्ते
और फिर जितने जानदार हैं उनमें खुदा ने सबसे मुमताज दर्जा जो है वो इंसान को दिया। सबसे मुमताज दर्जा जो है वो खुदा ने इंसान को दिया, इसीलिए इसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, मखलूकात में सबसे बड़ा। ध्यान कीजिएगा, पता नहीं आपने कभी गौर किया है कि नहीं, इब्लीस को यही बात अच्छी ना लगी और वो आदम और हवा के पास आया। मुझे यूं महसूस होता है कि अब तक आदम और हवा जो हैं वो सिर्फ खुदा से बातचीत कर रहे थे, अभी तक उन्हें किसी और से बातचीत का तजर्बा नहीं था, लेकिन इब्लीस आ टपका और फिर उनके कानों में किसी और की आवाज भी पड़ी और आवाज देने वाले ने कहा कि अरे खुदा ने तुमसे जो कहा है वो दुरुस्त नहीं है, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम तो खुदा की मानिंद हो जाओगे। आदम और हवा आशर भूल गए कि वो तो ऑलरेडी खुदा की मानिंद है। कभी गौर किया इस एंगल से? इब्लीस ने उनको कहा कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे तुम तो खुदा की मानिंद हो जाओ। अरे भाई, वो तो पहले ही खुदा की मानिंद है, वो तो खुदा का अवतार है। खुदा ने अपनी रूह इसलिए उनमें डाली है, अपना दम इसलिए उनमें डाला है कि वो इस जहां में खुदा बनकर, खुदा के नुमाइंदे बनकर उसकी खिदमत का काम करें। बस यही आदम और हवा से चूक हो गई। और आप बिलीव करेंगे, उनके पास तो कोई गाइड बुक नहीं थी, कोई रहनुमा किताब नहीं थी, तो चलो मान लिया कि उनसे चूक हो गई। मेरे और आपके पास तो रहनुमा किताब भी है, लेकिन इतने हजारों साल गुजर जाने के बाद, इस भेद के आश्कारा कर दिए जाने के बावजूद भी मैं और आप अगर भूल चूक का शिकार हैं तो फिर गौर कर लें मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है। सादा जुबान में भूल चूक तो कहते हैं उसे ना कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं और वो आपसे हो जाए, तो यहां तो सब कुछ बता दिया गया है। ये गाइड बुक आपको दे दी गई है, जिंदगी की रहनुमा किताब आपको दे दी गई है। इसे किताबे हयात कहते हैं, इसे जिंदगी की किताब कहते हैं। अब जिंदगी की इस किताब को आप ना पढ़ें और आपकी कारकर्दगी में फर्क आ जाए तो फिर कसूरवार कौन है? कसूरवार खुदा तो नहीं भाई, कसूरवार तो हम हैं, क्योंकि हम इस किताब की रोशनी में चले ही नहीं, इसलिए हमारी कारकर्दगी में फर्क है बेटा। और मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर आज एक बार फिर कहूंगा, इसीलिए लोगों को मौका मिलता और वो कहते हैं ये भी बस हमारी तरह के हो गए। इसका मतलब ये हुआ, इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये फर्क कायम करने की कोशिश की। उन्होंने इस फर्क को कायम किसी ना किसी तौर पर रखा, लेकिन मॉडर्न एज में आके हम गड़बड़ कर गए। अब लोगों को मौका मिल गया कि वो कहें कि ये भी हमारे जैसे हो चुके। हमने अपनी आइडेंटिटी, हमने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान जो है, मैं माजरत के साथ कहूंगा, खो दिया। आइए जरा चंद एक हवालों की तरफ चलें। सवातीन की पहली किताब और उसका 5वां बाब। सवातीन की पहली किताब और उसका 5वां बाब,
اس کا 8واں باب اور اس کی 53ویں آیت. First Kings chapter 8 verse 53. دھیان نہ سننا بھی آج دی آیت ہوں, ٹھیک ہے, بڑے دھیان دینا. میں اٹیچمنٹ پر ہوں. ابھی لکھا ہے کیونکہ تم نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا. کن کو الگ کیا؟ قوم بنی اسرائیل کو, یعقوب کی اولاد کو. اور میں کہوں گا کہ یہ آیت آج مجھ پر اور آپ پر صادق آتی ہے کہ بائبل کے خدا نے مجھے اور آپ کو الگ کیا. کلیسیا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کلیسیا کا لفظی مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ. ایکلیسیا یونانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ. وہ لوگ جن کو خدا نے دنیا میں سے چنا ہے اور الگ کیا ہے. سنیں کیا لکھا ہے, کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہوں. خدا کسی اور پر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم میری جائیداد ہو, لیکن خدا مجھ پر اور آپ پر یہ دعویٰ کرتا ہے, ہم میں سے ایک ایک پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم میری جائیداد, تم میری جاگیر ہو. دھیان سے سنیے گا بھائی, دنیا کے کسی فرقے, کسی قوم کے حوالے سے خدا کا یہ دعویٰ نہیں کہ تم اس کی جاگیر ہو, لیکن میرے اور آپ کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کی جاگیر ہیں. اب اسے نئے عہد نامہ میں لے آئیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ مقدس پالوس نے کہا تم اب اپنے نہیں ہو. ارے تم تو قیمت سے خریدے گئے ہو, بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب پھر وہی ہے, ارے تم تو خدا کی جاگیر ہو. خدا تو تم پر دعویٰ کرتا ہے کہ تم اس کی میراث ہو, بس تمہارے کام پھر ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے خدا کے ہیں. پھر سے سنیں, خدا نے مجھے اور آپ کو دنیا سے الگ کیا. خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا تو پیچھے مدعا یہ تھا کہ وہ خدا کی مانند ہوں, خدا کے جیسے ہوں اور خدا کے جیسے بیہیو کریں. اور جب خدا یسوع مسیح نے اس بگڑی ہوئی شکل کو پھر بنایا تو اس نے پھر ہمیں یہی لیسن دیا کہ ہمیں اب اس سدھار کے بعد اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے لیے نہیں. اس لیے کہ اب یہ جسم جو ہے وہ میرا اور آپ کا اپنا نہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے. اب یہ کہنا چھوڑ دیں آئی ول, بلکہ یہ کہنا شروع کر دیں thy will. یہ آئی ول جو ہے اس کو پھینک دیں کہیں پیچھے. اب یہ نہیں چلے گا میری مرضی نہیں, بلکہ اب تیری مرضی پوری ہو. چلیں ایک اور حوالے کی طرف چلتے ہیں. خروج کی کتاب پر آ جائیں. پرانے عہد ناموں میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب. خروج کی کتاب کا 33واں باب. موسیٰ خدا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور موسیٰ خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو پھر میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا دے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے. یہ بات 33ویں باب کی 12ویں تا 16ویں آیت میں لکھی گئی ہے. اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو پھر ہمیں بتا دے بھائی کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے, کیونکہ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت میرے ساتھ ہیں یہ تیری ہی امت ہیں. بائبل میں یہی لفظ ہیں بھائی, آپ چیک کر لیں. یہ تیری ہی امت ہیں, یہ تیری ہی قوم ہے. سو کہاں چلنا ہے, کہاں انہیں آرام کرنا ہے,
یہ تو نہیں طے کرنا. اور 16ویں آیت کا آخری حصہ عشر بڑا زبردست ہے. کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتا دے تاکہ ہم دنیا میں نرالے ٹھہریں. بہت بڑا لفظ ہے بھائی. ہم تیرے کہنے پر چلیں گے کیونکہ ہم تیری امت ہیں, ہم تیری قوم ہیں, ہم تیری جاگیر ہیں, ہم تیری جائیداد ہیں. چونکہ ہم مختلف کے طور پر جب چلیں گے تو پھر ہم دنیا میں نرالے ٹھہریں گے. لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے یار یہ تو بڑے نرالے قسم کے لوگ ہیں, یہ تو بڑے نرالے قسم کے لوگ ہیں. اور موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خدا کا یہ بڑا نرالا سا شخص تھا. خدا کے ساتھ جب جب اس کا انکاؤنٹر ہوتا تھا اس کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بدل جاتی تھی. اس کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بدل جاتی تھی. ہو سکے تو 34ویں باب کو, خروج کی کتاب کے 34ویں باب کو ضرور پڑھ لیجئے گا. جب وہ خدا سے ملاقات کے بعد نیچے اترتا تھا لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ بھائی اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھ کیونکہ ہم تیرے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے. اب 2 باتیں میں کہنے لگا. اگر میں اور آپ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں تو پھر کیا میرے اور آپ کے چہرے پر لوگوں کو خدا دکھتا ہے؟ اور کیا خدا ہمارے اندر چلتا پھرتا دکھتا ہوا لوگوں کو نظر بھی آتا ہے؟ اور کیا کبھی آپ میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں تیرے چہرے کی تاب نہیں لا سکتا؟ خدا کے لوگ جو ہیں کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے چہرے کی رونق ہے. بائبل کا خدا اپنے لوگوں کے چہرے کی رونق ہے. کہ میرا اور آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ خدا اس بیٹے اور اس بیٹی میں بستا ہے. چلیں ذرا نئے عہد نامے کی طرف چلیں. مقدس متی کی انجیل کے 5ویں باب میں آج جو آیات تلاوت کی گئی یہاں ہمیں 2 امتیازی نشان دیے گئے. ہمیں کہا گیا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہم نمک بھی ہیں اور ہم نور بھی ہیں. اچھا یہ جہاں ہوگا اپنی موجودگی کا پتہ دے گا. لائٹ جہاں بھی ہوگی اپنی موجودگی کا پتہ دے گی اور نمک جہاں بھی ہوگا کم ہوگا تب بھی پتہ دے گا, زیادہ ہوگا تب بھی پتہ دے گا. خدا کے لوگ بالکل رفاقت ایسے ہی ہونے چاہیے جہاں ہوں نور کی طرح ہوں, پتہ چلے کہ یہاں ایک چھوٹی سی شمع ہے. خدا کے لوگ جہاں بھی ہوں پتہ چلے کہ ہاں نمک کی صورت میں یہاں خدا کا کوئی بیٹا اور اس کی بیٹی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمارے آفس میں, اسی کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں, اسی کی وجہ سے ہماری کمپنی میں, اور اسی کی وجہ سے ہمارے چرچ, ہماری کلیسیا, ہماری کمیونٹی, ہمارے خاندان اور ہماری کنٹری میں رونق ہے. کل پھر باندھی ہے. لیکن ہمیں اس امتیازی نشان کا لحاظ اور خیال رکھنا ہوگا. جہاں بھی ہوں اپنی موجودگی کا پتہ دیں بھائی, اپنے آپ کو چھپائیں نہیں, کیونکہ نور اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا, نمک اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. یہ جہاں بھی ہوگا اپنا پتہ دے گا. اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ آدمیوں کے سامنے خدا کا انکار کرتے ہیں, مسیحی ہونے کا انکار کرتے ہیں,
याद रखें, लिखा है कि जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा। तो इनकार नहीं करना आपने भाई। सफर करदे कई बरकत मसीह तो सिर्फ बरकत ही रह जाते हैं, ते जिवें ही सिर्फ बरकत रह जाते हैं, बरकत तो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, क्योंकि सारी बरकत ते मसीह दे नाल है। बहुत सारे दोस्त हैं जो सफर करते करते मसीह का नाम जरा पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस हो तो उसे जरा छुपाने की कोशिश करते, कि भांडे ही नाम कर लें तो करते रहे भाई। अब अपने आप को छुपाते क्यों हैं? खुले बंदो बताएं कि आप कौन हैं। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। चले आगे बढ़ेंगे, दूसरे ग्रंथियों के खत पर आते हैं। दूसरे ग्रंथियों 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, क्योंकि हम खुदा का मक़दस हैं, चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। मैंने अभी कहा बाइबल का खुदा हम में बसता भी है और हम में चलता फिरता भी है, लेकिन क्या वो लोगों को बसता और चलता फिरता दिखाई भी देता है? मैं उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। वही लफ्ज दोबारा आ गया। मूसा ने क्या कहा? ये तेरी उम्मत है। और यहां पालूस ने क्या कहा कि जब खुदा हम में चलता बसता है, हम उसके लोग, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाते हैं। और फिर हमसे ये तकाजा किया जाता है। क्या तकाजा किया जाता है? 17वीं आयत, उनमें से निकलकर अलग रहो, नापाक चीज को न छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हमें अपने आप को अलग करना होगा। और मैं एक बड़ी बात सिखाने लगा हूं, ध्यान कीजिएगा। बात सारी यहां की है, यहां की अटैचमेंट पर हूं मैं, यहां की बात है भाई। यहां अंदर जो रखा हुआ है ये आपके सिवा किसी और की नहीं मानता। मैं ज़हन की बात कर रहा हूं, दिमाग की बात कर रहा हूं। ये अलग बात है कि आपने अपना ज़हन और आपने अपना दिमाग किसी और को दे दिया हुआ है, तो ये अलग बात है। ये किसी की नहीं मानता, ये सिर्फ मेरी मानता है और दर हकीकत इसको सिर्फ मेरी ही माननी चाहिए। और आखिर जब इसी को हम उठाकर अपने खुदाम के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो फिर ये मेरी भी नहीं मानता, फिर ये मेरे यस्सु की मानता है। इसी को तो अटैचमेंट कहते हैं। यही तो अटैचमेंट है। ये किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, लेकिन जब इसी को हम सरेंडर कर देते हैं, खुदावंद के कदमों में रख देते हैं, तो फिर ये मेरी भी नहीं मानता, फिर ये मेरे यीशु की मानता है। क्योंकि लिखा है नए अहदनामे में, मुकद्दस पौलुस कलीसियाओं को बताता है कि तुम में मसीह की अकल है। ये बाइबल के लफ्ज है भाई, तुम में मसीह की अकल है। और जब हम में मसीह की अकल होती है, तो मैं कहूंगा कि फिर हम अपनी अकल से पैदल हो जाते हैं। फिर हम पर जोर हमारा भी नहीं चलता, फिर हम पर जोर चलता है हमारे रब खुदावंद का। मेरा उठना बैठना चलना और फिरना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल का मतलब है रोशनी। चलें आगे बढ़ते हैं।
कुलसियों के खत पर आ जाए। तीसरे बाब पर आ जाए। कुलसियों का खत उसका तीसरा बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। और उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। अब सवाल यह है कि मैंने और आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अपनी चाल भी बदली है या कि नहीं? वो तो पास्ट था, जिस तरह से चाहते थे वैसे चलते थे, लेकिन नादानी की भी एक उम्र होती है ना भाई, नादानी की भी एक उम्र होती है। अब हम खुदावंद यीशु मसीह में मैच्योर हो चुके हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह में मैच्योर हो चुके हैं तो फिर हम नादानों जैसी हरकतें करें तो ये गलत होगा। इसीलिए मुकद्दस पौलुस जब कलीसिया को नामा लिखता है तो कहता है कि नादान ना बनो, नादान ना बनो। हर रोज अपनी रूहानी अकल में नए और फिर नए और फिर नए और फिर नए बनते और बनते चलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों के खत पर आ गए। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत से। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब। बड़ी जबरदस्त आयात है, इतना वक्त नहीं, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हां, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। हक की पहचान हासिल करने के बाद, इस रोड मैप के बाद, इस जीपीएस के बाद, इस गाइड बुक के बाद अगर हम इधर उधर होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के बाद अगर फिर हम इधर उधर होते हैं तो फिर गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं, सिर्फ 2-1 मिनट। हमें खुदा के साथ अटैच होना है, और खुदा के साथ अटैच होने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम, अपने रब खुदावंद को क्वालिटी टाइम देना होगा। क्वालिटी टाइम, खुद स्केड्यूल कर लें कि आपने खुदावंद को कौन सा टाइम देना है। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे। इससे पहले भाई 6 के बाद काम खराब हो जाता है, इससे पहले। और अगर आप मुझसे पूछें तो रात 3 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम जो है ये तो बड़ा ही जबरदस्त टाइम है, और यही रब खुदावंद से लेने का टाइम होता है भाई। खामोश, साइलेंट। या फिर वो टाइम जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं और बिस्तर पर जाने से पहले आप खुदावंद के साथ अटैच होते भी हैं कि नहीं? अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब ना सुबह सवेरे ही काम शुरू हो जाता है। बेटियां बेटे, क्योंकि मैं 4 बजे उठता हूं, 4 बजे के बाद मॉर्निंग डिवोशन सेंड करता हूं, फिर तांता लग जाता है कॉल्स का, उसके बाद मैसेजेस का, गवाहियों का, लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं। और अक्सर सुबह बेटियां मुझसे ये शेयर करती हैं, अंकल जी रात में बड़ी ख्वाब आई है। मैं कहते मेरे ये सुना कितने अटैच होंगी ना तो इस तरह की ख्वाब दी ऐसी दी तैसी, फिर इस तरह की ख्वाब दी ऐसी दी तैसी, फिर इस किस्म की ख्वाब ना आती, फिर डरावने ख्वाब ना आते अगर आप रात को यीशु के साथ अटैच होते। लेकिन आप तो रात 12 बजे तक फोन के साथ अटैच थे।
बड़ी मुश्किल जान छुड़ा के गुड नाइट का आखिरी मैसेज कह के, अच्छा गुड नाइट भी आप कह देंगे, दूसरी तरफ से गुड नाइट नहीं होती, वो अगला या अगली फिर जारी होती है, फिर थोड़ी सी होड़ जरा, क्योंकि पाकिस्तान में तो है लगे रहो भाई, लगे रहो पैकेज, सुबह तक अपना बेड़ा गर्क कर लो, 4 बजे तक अखा अन्नियां कर लो, ताकि आप सुबह काम करने के लायक ना रहे, आपका जहन मफलूज हो जाए, आपका दिल भी मफलूज हो जाए और आपके हाथ भी मफलूज हो जाएं, आप सुबह काम करने के लायक ना रहें। ये इब्लीस की वो चाल है जिसे आज की नौजवान नस्ल समझ नहीं रही, समझ नहीं रही। लगे रहो भाई, अगर आप खुदा के साथ अटैच हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, खुदा का खादिम होने के नाते, आपका रूहानी बाप होने के नाते, आपको कभी जिंदगी में डरावना ख्वाब नहीं आएगा, कोई गलत किस्म का ख्वाब नहीं आपको आएगा। ये ख्वाब उसी वक्त आपको आएंगे जब आप खुदा के साथ अटैच नहीं होते। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब आप यूसुफ की तरह खुदा के साथ अटैच होते हैं तो फिर आपकी जिंदगी के ख्वाब आपको आते हैं। खुदा आपको दिखाता है कि मैं आपके साथ आने वाले कल में क्या करने वाला हूं। सो मेहरबानी से अपने रब खुदावन के साथ अटैच हो, क्वालिटी टाइम दें। दूसरा, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं भाई। ये 2 वे ट्रैफिक है। आपने खुदा से बात जब करनी है तो खुदा की भी सुननी है। आपने अपनी दुआ खत्म करके आंखें बंद करके सो नहीं जाना, आपने कान खोल लेने हैं, आंखें खोल लेनी है, कान भी खोल लेने हैं, ताकि खुदा अब आपसे बातचीत करे। और तीसरी बात, अटैचमेंट के लिए जो तीसरी जरूरी चीज है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट, बड़े ही जबरदस्त ट्रस्ट के साथ हर बात को लेकर अपने रब खुदावन के साथ अटैच हो जाया करें, क्योंकि इसके पास, मेरे रब खुदावन के पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल मौजूद है। दूसरी बात खत्म करेंगे, अगर आप डिटैच नहीं हुए, लाताल्लुक नहीं हुए दुनिया से, अगर आपने दुनिया को भी रखा और खुदा को भी रखा, तो फिर मैं कहूंगा कि आप बड़ी खतरनाक पोजीशन में हैं। किसी एक का इंतखाब करना होगा। बाइबल मुकद्दस में क्या आया है? तुम खुदा और दुनिया, दौलत और दुनिया, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। हमें किसी एक का इंतखाब करना है, एक का, एक वक्त में एक का। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई भी शख्स एक वक्त में 2 लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अब बेटियां बैठी हुई हैं, क्या कहूं, आप समझ जाएं। आप कैसे इंसाफ करेंगे भाई? एक वक्त में 2-2, आप कैसे इंसाफ करेंगे? 2-2 सीमा, आप कैसे इंसाफ करेंगे? घर के लिए एक और सिम और बाहर के लिए एक और सिम, कैसे इंसाफ करेंगे? घर के लिए एक और पैकेज और बाहर के लिए एक और पैकेज। मैं आजकल व्हाट्सएप से जरा मैंने अपना रोड जो है वो चेंज किया, रूट चेंज किया, और मैं जरा यूट्यूब पर आ गया। कुछ प्रॉब्लम बन गई व्हाट्सएप टीम के साथ मेरी। बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं, फादर साहब वो व्हाट्सएप मैसेज जो थे ना बड़े आसान होते थे, तो पाकिस्तान में व्हाट्सएप का अलग पैकेज होता है और यूट्यूब का अलग। तो मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, खुदा के लिए यूट्यूब का पैकेज भी ले लें भाई। जे आपस की गलबात वास्ते तुसी व्हाट्सएप का पैकेज ले आए थे, यसू वास्ते भी ले लो, खुदा के लिए भी ले लें भाई, क्या फर्क पड़ता है?
याद रखें, जब तक हम दुनिया से अपने ताल्लुक को नहीं तोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आखिरी जुमला कहूंगा, कश्ती पानी में हो कोई मुश्किल नहीं है, कश्ती होती है पानी में, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए ये बड़ा खतरनाक है। मुझे किसी ने सुबह एक पोस्ट भेजी, उसने कहा जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, कहते हैं बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, ये गलत कहते हैं। जिंदगी थोड़ी सी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। असल में हमें इस बहुत बड़ी जिंदगी की समझ उस वक्त आती है जब हमने आगे चले जाना होता है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है, हमने ऐसे इसे छोटा सा बना दिया है। हाँ, हमें समझ उस वक्त आती है जब हमने आगे चले जाना होता है। अपने आप को हटाएं यहां से और अपने रब खुदावंद के साथ अटैच हो जाएं, बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें संजीदगी की रूह दे, ताकि हम अपनी असल को समझें और ये जानें कि हमें तेरे साथ अपने ताल्लुक को बनाए रखना है, इस ताल्लुक में आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है, यीशु के नाम में, आमीन। अरे हमारे बाप के जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद तू रहम कर, ऐ मसीह तू रहम कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।